Maharashtra is a state in the western peninsular region of India, occupying a substantial portion of the Deccan Plateau. The state is currently gearing up for assembly elections, which are slated to be held on 20th November. In today's episode of The Road Stop, we will hit the roads of Worli with Aditya Thackeray, who has earlier served as a Cabinet Minister of Higher Education, Tourism and Environment for the Government of Maharashtra. He is the son of Uddhav Thackeray and the grandson of Balasaheb Thackeray. Worli Assembly constituency is one of the 288 Vidhan Sabha constituencies of Maharashtra. It is one of the 10 Vidhan Sabha constituencies located in Mumbai City district and is a part of Mumbai South Lok Sabha constituency along with 5 other constituencies which are Shivadi, Baikola, Malabar Hill, Mumbai Devi and Kolaba. The population of Worli is 100% urban and it has 11.58% SC population and a 1.41% ST population. 9.2% of the population are Muslims. 2.7 lakh people qualified to vote and there was a voter turnout of 47.58% in this constituency in the 2019 assembly elections. Worli is a locality in central Mumbai and is one of the 4 peninsulas, with the others being Kolaba, Bandra and Malabar Hill. The constituency is known for a mix of residential and commercial areas, including parts of upscale Worli Sea Face. Politically, it has been a key battleground in the state due to its urban demographic and economic significance. Originally, Worli was a separate island, one of the 7 islands of Mumbai, which was ceded by the Portuguese to England in 1661. It was linked up with other islands in the 19th century. This seat has traditionally been held by the Shiv Sena, with various leaders of the party contesting and winning elections here. Over the years, it has seen a shift in political dynamics with increased competition from other parties like the Congress and the NCP. The BJP has also gained traction in this area. In the 2019 assembly elections in Maharashtra, Shiv Sena candidate Aditya Uddhav Thackeray won the Worli seat with a margin of around 67,000 votes. Aditya Thackeray was born on 13th June 1990 to Uddhav and Rashmi Thackeray. He studied from the Bombay Scottish School in Mahim in South Mumbai. He obtained a BA History degree from the St. Xavier's College in Fort in South Mumbai and got his law degree from Kishan Chand Chelaram Law College at Churchgate. He is the son of Uddhav Thackeray, who was an Indian politician who served as the 19th Chief Minister of Maharashtra, leader of the Shiv Sena UBT, and the grandson of Balasaheb Thackeray, who founded the original Shiv Sena. In October 2019, Thackeray contested the 2019 Maharashtra Legislative Assembly elections and emerged victorious. He became the Cabinet Minister for Tourism, Protocol and Environment on 30th December 2019 in the Uddhav Thackeray-led Maha Vikas Aghadi government. Prior to getting officially elected, Thackeray played a significant role in several projects during the Devendra Fadnavis-led government, prominently being the ban of single-use plastics in Maharashtra, which was well received by residents of the state. People wait in anticipation as Aditya Thackeray is scheduled to arrive soon, part of his campaigning. Also a part of the crowd is Shiv Sena MP Sachin Ahire, who we speak to first. सचिन जी, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क में। सचिन सर, आदित्य जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं वर्ली की विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या मुद्दे हैं और जिस तरह से नैरेटिव महायुति उनके अगेंस्ट में चला रही है, तो उन सबको आप कैसे देखते हैं? कैसे कि ये उनको घेरने की कोशिश की जा रही है ताकि वो यहीं पे ही व्यस्त रहे। आज आपने देखा होगा कि एक 32 साल का नौजवान एक टक्कर देकर एक संघर्ष योद्धा बोलकर जब खड़ा रह रहा है, उसको साथ यहाँ के मतदार देंगे। रहा सवाल जो स्थानिक स्तर के ऊपर मुद्दे हैं, आज बड़े पैमाने के ऊपर रीडेवलपमेंट जो रुके थे उसको गति मिलने का काम किया गया। बीडी चाल जैसे चालियों को भी रीडेवलपमेंट किया गया, स्लम रिहेबिलिटेशन, क्लस्टर डेवलपमेंट्स और वर्ली को एक A+ का लुक देते हुए हर एक को सुरक्षित रखकर उनको हक का घर देने की पूरा मनोकामना जो थी वो पूरी आज करते हुए रहे।
हम ये दावा नहीं करेंगे कि 100% काम खत्म हो गया, बट 2.5 साल जिस तरह से सरकार में रहने वाले महायुति के लोगों ने जानबूझकर उनको कैसे तकलीफें दी जाए, जानबूझकर ये इलाके में फंड नहीं दिया जाए, ऐसी गंदी राजनीति कर कर उनको घेरने का काम किया, फिर भी लोग आज उनके साथ है, लोगों ने उनको सपोर्ट करने का काम किया और मुझे आत्मविश्वास है कि लोग साथ देंगे और जरूर वो चुनकर आएंगे। एक तरफ मिलिंद देवरा को खड़ा किया है महायुति ने, सिंधे गुट से आते हैं और वो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि जो 5 साल का टर्म रहा है आदित्य ठाकरे का, किसी तरह का विकास नहीं हुआ। आपने भी अभी बताया कि किस तरह से 2.5 साल से यहाँ पे किसी तरह का फंड नहीं दिया गया। तो कैसे इन सारे आरोपों को आप देखते हैं जो मिलिंद देवरा अभी लगा रहे हैं आदित्य ठाकरे के ऊपर? पहले बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मिलिंद देवरा यहां से भी सांसद थे, लोगों ने उनको गिराकर शिवसेना की सीट को जिताने का काम किया, तो ये दायित्व उनके ऊपर भी था क्योंकि 2.5 साल वो भी हमारे साथ सरकार में थे। तब वो क्यों ने उन्होंने सोचा वर्ली के बारे में, तब क्यों ने उन्होंने आए, और आज अभी 1.5-2 साल में जब वो राज्यसभा के सदस्य महायुति से बने, कितना विकास काम या कितने बार इस वर्ली इलाके के बारे में उन्होंने बात करने का काम किया, क्योंकि वो सांसद थे। अगर वो सांसद नहीं होते और आज उम्मीदवार होते तो भी मैं मानता, लेकिन सांसद होने के बावजूद भी जो उन्होंने यहाँ के विषयों को लेना चाहिए था, एक बार भी उन्होंने कभी बात की क्या, एक बार भी उस चीज के बारे में चर्चा की क्या? चुनाव जब आते हैं उसके 6 महीने पहले वो बात करने लगते हैं। तो मुझे लगता है लोगों को ने उनका काम देखा है, जो हमारे पे आरोप करते मिलते नहीं है, तो ये सब लागू उनके ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जनता बहुत सुज्ञ है, तो सवाल यही है कि जो रिजेक्टेड है उन लोगों को सामने खड़ा करने का काम किया है। फिर आज संदीप देशपांडे जी वो चुनाव हारे हैं प्रभा देवी से, महानगर पालिका, एक महानगर पालिका के हारे हुए चुनाव को सामने रखने का काम किया गया। तो ये सिर्फ, और जो बी टीम बोलकर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जो कहते हैं एक बाजू में हम सेक्युलर है और एक बाजू में मिलिंद देवरा जी कहते हैं, दूसरे बाजू में ये बी टीम को सामने खड़ा करने का काम करते हैं। वो स्पष्ट करे ना कि उनकी भूमिका क्या है यहाँ की सेक्युलरिज्म के बारे में। मिलिंद देवरा जी स्पष्ट करे कि उनको भोंगे बंद चाहिए क्या, जो राज ठाकरे कह रहे उससे वो सहमत है क्या। तो अपनी राजनीति बहुत सोए अनुसार जो करने का काम जो करते हैं वो लोगों को मालूम है, और इसलिए लोग उनको नहीं वोट देंगे, ऐसा हमारा मानना है। राज ठाकरे की आपने बात की, जिस तरह से उन्होंने अभी बयान दिया है उद्धव जी को लेकर भी कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बेच दी, कैसे बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट हटाकर जनाब बाला साहब ठाकरे लिखा गया कई जगह पोस्टरों पे। फिर महाराष्ट्र में हमने अभी देखा किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे, फिर वहीं बटेंगे तो पिटेंगे के भी पोस्टर्स लगे। तो ये सारी नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं इस चुनाव में? मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं कि जिसमें खुद राज ठाकरे जी और उद्धव जी एक कार्यक्रम में साथ में, जिसमें हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लिखा गया है। ये और एक फेक नैरेटिव्स की जा रही है जिसको कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है। आज जब ये बात ये लोग करते हैं, यही लोग हैं और इनके ही उम्मीदवार हैं जो जाके ईद में बराबर अपनी दावतें खाते, जो मदरसे में जाकर वोट मांगने बराबर चुप चुप के जाते हैं। तब इनको ये सब चीजें क्यों नहीं आती? वो कह दे कि भाई नहीं, हमको वोट की जरूरत है। ऐसा है कि कोई भी तबका और कोई भी धर्म के लोग भारत के नागरिक है, उनको वोट का अधिकार है। अगर हिंदू धर्म गुरु के पास हम जा सकते हैं तो अन्य धर्मों के पास भी जाना ये कोई गलत बात नहीं है। और ये आज नहीं, और बाला साहब ने कभी भी किसी एक समाज का द्वेष नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी समाज के जो हमारे देश के खिलाफ है उनके बारे में उनकी शिकायतें थी और की, और वो मुझे लगता है हर तबके के समाज के लोग मान्य करते हैं कि जरूर ये बात स्पष्ट होगी। इसीलिए ऐसे तरह के नैरेटिव्स तैयार करके वोटों को डिवाइड करने का काम वो करने की कोशिश है। एक बाजू में वो ये बात करते हैं, दूसरे बाजू में देश के पंतप्रधान आते हैं, योगीनाथ जी आते हैं, वो कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे। देश के पंतप्रधान कहते एक है तो सेफ है। ये क्या है? क्यों नहीं विकास की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं वो महाराष्ट्र के हम क्या देंगे, हमने क्या दिया है उसके बारे में? तो जब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी चुनाव हारते हैं तब ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सामने करने का काम किया जाता है। ये दुर्दैव है। हमने ये मुद्दा नहीं लिया, हम बेरोजगारी का मुद्दा ले रहे हैं, महिलाओं का सुरक्षण की बात कर रहे हैं, जो शेतकरी है उनको कर्ज मुक्त करने की बात कर रहे हैं।
तो हमारे जो नैरेटिव्स है वो विकास के है, और इनके जो नैरेटिव्स है ये जाति जाति और धर्मों को बांटने का काम। अगर जाति धर्म की बात करें तो क्लियर करे कि मराठा समाज के बारे में उनकी क्या भूमिका है, ओबीसी समाज के बारे में क्या भूमिका है। एक बाजू में कहते हैं हम मराठा को आरक्षण देंगे, दूसरे बाजू में ओबीसी को कहते हैं कि हम नहीं देंगे। न मांगते हुए भी अन्य समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जो है वो समाज के लोगों की योजनाएं बंद की जा रही है। एक बाजू में महिलाओं को 1500 रुपए की लाड़की बहन बोलकर योजना जाहिर की जाती है, दूसरे बाजू में गैस सिलेंडर, दूसरे बाजू में कर्जी जो शेतकरियों के बारे में और जीएसटी और टैक्स बढ़ाकर दूसरे तरह से पैसा लिया जाता है। तो ये जो दुहेरी जो भूमिका है ये लोगों तक के लोगों को मालूम है, और इसलिए लोग इसके बारे में ये लोकसभा में भी ऐसी जब चीजें आई है तो लोगों ने इनको नकारा है, ठुकराया है, और वही ट्रेंड इस विधानसभा में रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा। आज चूंकि आदित्य ठाकरे जी इसी अंबिका अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर से अपने कैंपेन को भी आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार उनकी जीत का जो आंकड़ा था वो 60,000 से अधिक वोटों का था, तो इस बार कितनी जीत के लिए, कितनी बड़ी जीत के लिए आप लोग सुनिश्चित हैं? जरूर, बहुत हमारी अपेक्षा है कि भारी से भारी वोटों से जीते। कितनी वोटिंग होगी, कितनी परसेंटेज होगी, इसके लिए आंकड़ों के खेल में न जाते हुए हमको आत्मविश्वास है कि वर्ली की जनता, एक नौजवान जो कुछ तो भी करना चाह रहा है, एक संघर्ष योद्धा बोलकर मुंबई के प्रश्नों को लेकर, वर्लीकरों के प्रश्नों को लेकर लड़ रहा है, ऐसे वक्त के ऊपर उसको साथ देना ये एक हमारा कर्तव्य है, एक वर्लीकर बोलकर एक कर्तव्य है। इसीलिए भारी से भारी वोटों से वो जीत कर आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। Aditya Thackeray arrives and goes straight ahead for his temple prayers. While at the temple, he is greeted by people who adorn him with garlands. Meanwhile, we get an opportunity to speak to Aditya Thackeray as he begins his campaign. अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे जी। आदित्य जी, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, इस बार आप फिर से वर्ली से कैंडिडेट के तौर पे हैं, आपके सामने मिलिंद देवरा है, तो किस तरह का मुकाबला आप यहाँ देख रहे हैं? मेरे सामने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, और यही मैं कहता हूँ कि सारे उम्मीदवार महत्वपूर्ण हैं। कोई एक आदमी सिर्फ सरनेम की वजह से या जो कोई उनका पद पहले रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता, उनके काम बोलते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि सारे जो उम्मीदवार हैं कोई सपना लेके आया है, और मैंने जो सपने दिखाए थे वो पूरे कर दिखाए है। वर्ली के जो आश्वासन थे वो पूरे किए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है मूविंग वर्ली फॉरवर्ड, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं महाराष्ट्र में, वो आरोप लगाते हैं महाविकास अघाड़ी पे कि किस तरह से महाविकास अघाड़ी ने काम नहीं किया जब वो 2.5 साल की सरकार में यहाँ थी, और फिर वो एक आह्वान भी करते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इन सारे बयान को प्रधानमंत्री के आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, प्रधानमंत्री महोदय यही कह रहे हैं कि जो भाजपा की नीति होती है, बांटो और जीतो फिर लूटो। अगर हम सब साथ में रहेंगे, एक रहेंगे महाराष्ट्र में, तो भाजपा से सेफ रहेंगे। तो यही बात वो कहना चाहते थे, वो भाजपा की तरफ से यही बात कहना चाहते थे। और दूसरी बात यही है कि उन्होंने जवाब देना चाहिए कि अभी तो वो आने शुरू हुए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में सारे के सारे जॉब्स, सारे के सारे इंडस्ट्रीज यहाँ से लेकर वो गुजरात क्यों लेके गए? वहाँ अभी उसमें कोई जवाब नहीं है। अभी आके कोई ना कोई धार्मिकवाद निर्माण करेंगे, कोई ना कोई जाति में वाद निर्माण करेंगे, लेकिन जो काम की बातें होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती है, जो सेवा की बातें होते हैं, वो क्यों नहीं करते? हमें तो ऐसे लगने लगा था कि महाराष्ट्र क्या हम इस देश में है कि नहीं, क्योंकि जो केंद्र सरकार से हम पे अन्याय होता है, जीएसटी ना वक्त पे आता है, कभी ना कोई इंडस्ट्री आती है, तो ये अन्याय सिर्फ भाजपा के दौरान होने शुरू होगा। आपके चाचा जी हैं राज ठाकरे, उन्होंने आपके पिता पे भी काफी बड़े आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया, और लगातार उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किस तरह से कांग्रेस के साथ चली गई। अगर आप मनसे का इतिहास देखें तो हर एक चुनाव में अलग भूमिका लेती है, जो उनको सेट करते हैं उन्हीं के साथ जाते हैं, तो मैं ज्यादा महत्व नहीं देता उन्हें। वर्ली के लिए इस बार क्या वादे रहेंगे आपके वर्ली के लोगों के लिए? किस तरह से विजन है आपका? विजन यही है, एक तो गृह निर्माण का बड़ा विषय है, बहुत सारी इमारतें 100 साल पुरानी है, तो वो पुनर्विकास के लिए जारी है। दूसरा, ट्रैफिक का जो मसला है, महाराष्ट्र में हो मुंबई में हो, वो हल करना है, और काफी सारे जो लोकल इश्यूज है उसमें तो काम जारी है। यहाँ लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, कभी यहाँ पे पोस्टर देखने को मिलता है बटेंगे तो कटेंगे, फिर उत्तर भारतीयों के लिए बीजेपी के नेता हमारे महाराष्ट्र पे आक्रमण कर रहे हैं सिर्फ लूटने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और
जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की ये जितनी भी गारंटीज लॉन्च की गई हैं, तो बीजेपी आरोप लगाती है कि महाविकास आघाड़ी ने पहले भी कांग्रेस ने कहीं अपने वादे पूरे नहीं किए। पहले वो मोदी गारंटी पे बात करें, वो तो सारे जुमले थे, उस पे बात करें। इस बार का मुकाबला काफी अहम है शिवसेना के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद आपकी दोनों शिवसेना फिर से आमने सामने एक आइडेंटिटी लेना है। ये मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण है, अहम है, क्योंकि ये लड़ाई महाराष्ट्र के अस्तित्व की है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की और जाएगा उस पर है। Newsx goes on to speak to the people and understand the pulse of Worli. आपको बता दूं कि ये वर्ली विधानसभा का जो सीट है 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से फिर से चुनावी मैदान में आदित्य ठाकरे, जो कि पुत्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के जो प्रधान हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे हैं, तो वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके समक्ष में एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट से मिलिंद देवरा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि मामला इस बार त्रिकोणीय है, क्योंकि यहां से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है, उनके पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे संदीप देशपांडे भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे। तो हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में। आपका नाम? मेरा नाम रेहान शेख है। रेहान, काफी हाई प्रोफाइल क्षेत्र बन गया है वर्ली का, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, कैसे आप देखते हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल को, कितना डेवलपमेंट आपके क्षेत्र में हुआ है? जैसे आपको पता है कि ये धोबी घाट का इलाका है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये टाइम काफी टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जी है, संदीप देशपांडे जी है और मिलिंद देवरा जी भी है। तो अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो हर कोई कर रहा है, अपने एंड से सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट दिस टाइम आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट एंड राइट नाउ वी कैन नॉट से हु विल विन। पिछले 5 साल आदित्य ठाकरे ने आपका प्रतिनिधित्व किया है महाराष्ट्र की विधानसभा में, उनके कार्य को आप कैसे देखते हैं? खास तौर पर जो धोबी घाट का इलाका है, काफी कंजेस्टेड इलाका है, काफी पुरानी इमारतें हैं यहाँ पर, और जो रिकंस्ट्रक्शन का एक मुद्दा है, जो पुराने घर हैं उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का मुद्दा है, तो इन सारे चीजों पर किस तरह से काम हुआ है? देखिए 5 साल मुझे लगता है उनके लिए बोलना कि उन्होंने क्या काम किया ये मुश्किल रहेगा। काम हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट ये रीडेवलपमेंट वगैरह ये काफी बड़े मुद्दे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार वो फिर से जीत के आते हैं तो हम बता पाएंगे कि उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है कितना नहीं किया है। बट आदित्य जी ने भी काफी अच्छा काम किया है और यहाँ पे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं उनके, तो आई थिंक उनको और एक चांस मिलना चाहिए। सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में मिलिंद देवरा अब उनके सामने है, तो क्या लगता है सेना, असली सेना यहाँ से कौन बनकर आएगा, कौन सेनापति होगा इस चुनाव में? देखिए कहना तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बट टफ फाइट होगा और देखने मजा आएगा हमें भी कि क्या होता है। अभी ये गठबंधन जो बना है इससे अभी पता चलेगा कि कौन आते हैं, आदित्य जी आते हैं, महाविकास आघाड़ी आती है या मिलिंद देवरा जी आते हैं। ठीक है, तो अभी और भी लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। आपका नाम? मेरा नाम रक्षित सारंग। रक्षित जी, सबसे पहला सवाल, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी पहले, उसके बाद महायुति की सरकार हो गई। दोनों सरकारों ने काफी इस बार जो अलायंस है इनका, उन लोगों ने काफी गारंटीज की घोषणा की है, तो कैसे देखते हैं इन गारंटीज को जिस तरह से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं इस चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वर्ली विधानसभा में तो मोस्टली तो शिवसेना ही आ रही है, आदित्य जी ठाकरे इनकी, तो मुझे यही लग रहा है कि यही आ सकते हैं ये साल भी। मगर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, चूंकि एकनाथ शिंदे गुट से मिलिंद देवरा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी, वो पहले 2 बार एमपी रह चुके हैं मुंबई से ही, फिर वो इस बार भी राज्यसभा में एमपी है और इस चुनाव में भी वो उतरे हैं। फिर दूसरी तरफ संदीप देशपांडे भी हैं, तो मामला दिलचस्प है। तो कैसे भरोसा किया जाए कि किस पार्टी की तरफ वोट ज्यादा जाएंगे? मुझे तो मेरे एरिया में तो ऐसा ही लग रहा है कि मोस्टली आदित्य जी ठाकरे ही चुन के आ सकते हैं, क्योंकि मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ तो उनका सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। धोबी घाट का इलाका है, काफी तंग गलियां भी हैं इधर, सड़कें पतली पतली हैं, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, पुराने जो मकान हैं काफी जर्जर मकान हो चुके हैं, उनको रीडेवलप करने का भी मुद्दा बड़ा है।
तो इन सारे मुद्दों पर आप कैसे देखते हैं आदित्य ठाकरे के काम को पिछले 5 सालों में? आदित्य ठाकरे तो अभी अभी नए आए हैं, तो मुझे मतलब इतना ज्यादा तो उनको अभी डेवलपमेंट के लिए ऑप्शंस मिले नहीं है यहाँ पे। तो मोस्टली अगर उनको ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए तो कुछ आगे कर सकते हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। The battle for the legacy of Balasaheb Thackeray in Maharashtra has put all the attention on this young, third-generation leader. Whether he lives up to the challenge is something that only time will tell. For now, this is all we had for this episode of The Road Stop. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.